Okay, so from today we'll start the third unit of your syllabus, which is numerical methods. So let's see the introduction. So a finite difference play a vital role in numerical analysis when observed values are available. Okay, let y equal to f of x. Suppose this is your given function, be any given function where x is the some finite, where x takes actually some finite values x0, x1, x2, xn, and corresponding y's are y0, y1, y2, y3 up to yn and yn plus 1. Okay, so these are called as tabulated values. Okay, or simply if I take say y is equal to e raised to x, then for x0, say consider x0 as 0 and corresponding to 0 your y is e raised to 0 is 1, corresponding to 1 your y is e raised to 1, corresponding to 2 your y is e raised to 2, corresponding to 3 your y is e raised to 3. ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास e की वैल्यू पॉइंट में रहेगी, लाइक से 2.4, इसका स्क्वायर है तो विच इज 4 पॉइंट समथिंग, ओके लाइक दिस, है ना, 16 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन. ऐसे कुछ पैटर्न में वो गिवन होगा एंड दिस डाटा, ओके, दिस डाटा इज कॉल्ड एज tabulated form. Okay, so these are here, so these values are given in terms of tabulated form, है ना. So okay, so here in this topic actually we don't have the given function. Okay, difference क्या है कि यहाँ पे आपके पास given function नहीं होगा. Okay, instead of this given function we have just this tabulated values. Okay, or simply I can say for x is equal to 1, okay, your y takes value is 2, for x is equal to 2 your y takes value 4.2, your x is equal to 3 your y takes value 5.4. So if you see this data x and y, here you cannot identify your given function. जैसे यहाँ पे वो e के पावर में मैंने लिखा था, आपको इजीली समझ में आ रहा है कि वहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था वो e रेज़ टू x फंक्शन था. बट अगर इस फॉर्म में अगर मैं आपको डाटा देता हूँ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दी गिवन फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज अवर एम या व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर एक्चुअली. ओके, सो फ्रॉम दिस tabulated data we have to construct the corresponding function, and remember this function is the approximate function, because we cannot find the exact function which satisfies this given data, but at least we can find the approximate function which satisfies this given data, है ना. क्योंकि रियल लाइफ में जनरली जो डाटा आपके पास आता है वो टेबलेटेड फॉर्म में आता है ना. टेम्परेचर एंड टाइम में अगर आप डाटा लेते हो, है ना, या अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसमें भी आपके पास एक डाटा आता है. वी डोंट हैव एनी फंक्शन कि चलो इस फंक्शन से ही आपके पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो फंक्शन ओके आप एक्चुअली न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस न्यूमेरिकल मेथड्स. एंड फॉर दैट इन अवर सिलेबस वी हैव द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन. Okay, so what is this interpolation? Interpolation is actually a technique or a process of estimating the value of given function y is equal to f of x for any intermediate value of independent variable x, okay, in the given interval xi to xi plus 1. And the process of finding the values for y equal to f of x for any values of x which lies inside the interval is called as inside the interval, or xi into xi plus 1 is called as interpolation is what when that value lies in the interval, and extrapolation is what when that value lies outside the interval. Okay, सिंपली स्टेटमेंट से ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए. यहाँ पे सिंपली क्या है, आपके पास एक टैबुलेटेड डाटा गिवन होता है ना. फॉर एग्जांपल ये आपके पास टैबुलेटेड डाटा है, व्हेन x टेक्स वैल्यूज 1 2 3, y टेक्स वैल्यूज 2 4.5 and 5.4. अगर मैं आपको वैल्यू अगर इफ आई आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड y, I will tell you what is difference between extrapolation and interpolation, है ना. क्योंकि स्टेटमेंट से अच्छा है कि आपको मैथमेटिकली वो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी. इफ आई आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड y when my x is equal to 2.3, है ना, because here we have given a data for x is equal to 1 2 and 3. so this 2.3 actually lies in the interval 1 2 3. आपके पास जो डाटा है उसमें इंटरवल क्या आ रही है 1 2 3, और ये जो 2.3 वैल्यू है आपके इंटरवल में आ रही है. therefore this is called as interpolation, है ना. and if I ask a value of y for x is equal to say 100, then here you can say this 100 is out of the given interval, therefore it is called as extrapolation. that is the difference between interpolation and extrapolation. okay, so interpolation में जनरली आपको क्वेश्चंस कैसे आने वाले, विद इन इंटरवल ही आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. okay, so that is the difference between interpolation and extrapolation. Extrapolation. Okay, so now next part is, so it is not easy actually to determine the exact form of given function. okay, आपको मैंने पहले क्लियर किया है कि आपके पास बस एक ऐसे डाटा आने वाला है कि x
corresponding to x and y, where x is equal to say 0 1 3 and corresponding to y say 4.2 है ना, रैंडम ले रहा हूँ मैं 5.7 1.7 like this. Okay, so from this information, okay, it is not easy actually to calculate the exact function. तो इसके corresponding function क्या आ रहा है वो calculate करना, वो exactly calculate करना it is not the easy task, or sometimes it is impossible to calculate that exact function corresponding to given data. Okay, so that's why we always consider or we approximate this given data by a polynomial. Okay, so in such a case we consider a polynomial like say y is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x square up to and so on. Okay, so degree of x is depend on your given data. Yeah? So degree of x is depend on your given data, such as xi yi, okay, satisfies this equation. Okay, this equation, so this xi and y, okay, so this is your x0, this is your x1, this is your x2, and this is your y0, this is your y1, and this is your y2. तो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट क्या है, such that so these all x and y actually satisfies this polynomial equation. Okay, and here all the points xi y lies on the polynomial. Sometimes it is possible that the function y equal to f of x may satisfy other than xi y, मतलब other than these values also और भी ऐसे values रहेंगे which satisfies this given polynomial. Okay, hence the polynomial is called as polynomial approximation of the given function. या simply इस statement में आपको मैंने क्या explain किया है. So here we are not going to find the exact function corresponding to given data. Okay, आपका टारगेट क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एक अप्रोक्सीमेट फंक्शन कैलकुलेट करना है. अभी क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज दैट फंक्शन, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बट व्हाट इज दैट फंक्शन और हाउ यू अप्रोक्सीमेट अ गिवन डाटा. ओके, सो टू अप्रोक्सीमेट अ गिवन डाटा जनरली वी कंसीडर अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना. तो बाकी सारे फंक्शन को आपको स्किप करना, आपको बस फोकस कहाँ पे करना है, जस्ट फोकस ऑन द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड यूजिंग दिस पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली वी अप्रोक्सीमेट द गिवन डाटा. ठीक है, I hope this part is clear to everyone now. Okay, now next statement is let us consider the approximating polynomial for finding the values of y corresponding to values of x which may lie inside the interval that is called as interpolation. For example 0 to 3 interval है, तो 0 to 3 interval में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के लिए अगर आप y कैलकुलेट करते हो, that method is called as interpolation. Okay, if that value lies outside the interval then it is called as extrapolation. Okay, okay, so that is all about the introduction. या सिंपल इंट्रोडक्शन में आपको क्या था, या बेसिकली ये जो यूनिट है न्यूमेरिकल मेथड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके पास डाटा जो गिवन होगा वो टैबुलेटेड फॉर्म में गिवन होगा. एक्स एंड वाई का डाटा आपके पास रहेगा, लाइक से एक्स इक्वल टू 0 1.2 है ना, x is equal to 1, your value is 1.4, then x is equal to 3 ना, your value is 2.5. आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं जो x के वैल्यूज भी ले रहा हूँ ना, में कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस नहीं है. Okay, so these are the random values and corresponding x corresponding y are also the random values. Okay, there is no relation between the values of x and there is no relation between the values of y. Okay, common difference मतलब ऐसे अगर मैं values लेता हूँ, okay, here you can see in all these values the common difference is 1. ठीक है, और द वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वल स्पेस. तो यहाँ पे ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके जो एक्स के वैल्यूज है वो इक्वल स्पेस ही चाहिए या उनमें कॉमन डिफरेंस चाहिए. आप रैंडम, ओके, यू कैन टेक रैंडम वैल्यूज फॉर एक्स, यू कैन टेक द रैंडम वैल्यूज फॉर वाई करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्स, एंड आवर टारगेट इज व्हाट, यूजिंग दिस डाटा. ओके, अभी बाकी अगर पीछे का पार्ट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ओके. उसमें एक्चुअली क्या था, सो यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन विच सैटिस्फाइज दिस given xi and yi. We have to construct a function which satisfies the given xi's and yi's. ठीक है, that is our first objective. Now second is what, now how you find the corresponding function. To do that we generally consider the polynomial function, or simply how you approximate the given function or the corresponding function. So to approximate the corresponding function, okay, we consider a polynomial function like this, a1 plus a1x plus a2 x square and so on. Okay, तो ये भी और पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, ओके, दैट डिग्री यू कैन फाइंड फ्रॉम द गिवन डाटा. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वैल्यूज है, दिस इज योर x0, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2. सो टोटल देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन. इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी पॉलिनोमियल आ जाए, क्योंकि एक नंबर आपका कांस्टेंट में जाता है,
ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलीनॉमियल आ जाएगी उसकी डिग्री क्या आने वाली है 2. So always remember, if number of observations are n, if number of observations are n, then its corresponding polynomial has a degree n minus 1. ठीक है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉलीनॉमियल आ जाएगी उसकी डिग्री क्या होगी n minus 1. ओके, तो ये आपका टारगेट है. सिंपली इस यूनिट में करना क्या है कि डाटा गिवन होगा, डाटा को आपको अप्रोक्सीमेट करना है बाय सम फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीनॉमियल फंक्शन. दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल मेथड्स. ओके, हाँ, and I'm talking about this finite difference. Okay, so suppose a function y equal to f of x is a finite difference, means difference between two the consecutive values of x is finite. Okay, so suppose that a function y equal to f of x is a tabulated. Okay, tabulated का मीनिंग आपको पता है, x और y के वैल्यूज आपके पास आ जाते हैं. ओके, फॉर इक्वली एंड अनइक्वली स्पेस वैल्यूज, ये भी आपको एक्सप्लेन किया. इक्वली स्पेस मीन्स लाइक दिस. ओके, यू विल हैव अ कॉमन डिफरेंस. अनइक्वली स्पेस मीन्स 1 3 10 15 लाइक दिस. ओके, सो दिस वैल्यूज आर अनइक्वली स्पेस. सो टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, अभी यहाँ पे आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है. आप यहाँ पे खाली एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट नहीं करने वाले हो, है ना. आपको अभी मैंने क्या बोला कि यूजिंग दिस डाटा आपको एक फंक्शन कैलकुलेट करना है, बट इतना ही नहीं कि आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट नहीं करने वाले हो, आप एक्चुअली उसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हो. नॉट ओनली दिस, आप उसका इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो. बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट्स इंटीग्रेशन. ओके, okay, and for that, okay, in our syllabus, so there are different techniques actually. Okay, in general there are different techniques to calculate or to approximate the given function. Okay, or to approximate a tabulated data in terms of function. Okay. But in our syllabus we have this first method, we call it as Lagrange's interpolation formula. Generally ये method follow होती है. Okay, ज़्यादातर example में. So the first method is Lagrange's interpolation formula. Okay, फिर से जैसे ये वर्ड आ जाता है ना कि Lagrange's interpolation formula, पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि उसमें करना क्या है. ओके, फिर मैथमेटिकल पार्ट आता है. ओके, अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज Lagrange's interpolation formula, तो आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि Lagrange's interpolation formula में कि जो tabulated डाटा आपके पास आ जाता है, ओके, फ्रॉम दैट tabulated डाटा वी कैन फाइंड द approximate function, और that approximation is done by a polynomial function. ठीक है. ओके, so see there are many interpolation formulas, okay, are available only there are many interpolation formulas are available only for equally spaced values. Okay, Newton's forward and Newton's difference formula, you will later on you will understand how to find the function, okay, corresponding to equally spaced data. So by extractability there are many different techniques for the equally spaced data. But here why this formula is very important, because this result is true for unequally spaced data also and for equally spaced data also. तो यहाँ पे कोई ऐसा restriction नहीं कि जो डाटा आपको गिवन है वो इक्वली स्पेस ही चाहिए, लाइक दिस 1 2 3 4. ओके, ऐसा कोई restriction नहीं है. तो आप इक्वली स्पेस भी ले सकते हो और आप अनइक्वली स्पेस भी ले सकते हो. ओके, दैट इज द स्ट्रॉन्ग benefit of this Lagrange's interpolation formula. Okay, and what is this formula? This so in this case, how you define your y? So this y is defined by a polynomial of degree n, okay, which is equal to summation I runs from 0 to n yi li of x. Okay, तो अभी के लिए आप कंसिडर करो कि आपके पास ये डाटा गिवन है x i y i. ओके, फर्स्ट वैल्यू हमेशा फर्स्ट वैल्यू आपको x0 से डिनोट करनी है और y की फर्स्ट वैल्यू आपको y0 से डिनोट करनी है. नेक्स्ट इज x1 एंड y1. ओके, नेक्स्ट इज x3 एंड y3. ओके, तो यहाँ पे समीशन आपको कैसे रन करना है? समीशन आई रन्स फ्रॉम 0 टू n. ओके, आपको इसका मतलब समझ में आएगा. ओके, सो फर्स्ट वैल्यू क्या है? इफ आई पुट i इक्वल टू 0 यू विल गेट y0 L0 of x, correct? If I put I equal to 1, you will get y1 L1 of x and so on. I will not write the next term. Okay, so this is the approximation for the given function, that is the value of y. ये आपका फॉर्मूला ही है. तो जो भी आपका गिवन फंक्शन होगा for that corresponding tabulated data, that function is y is equal to y0 multiplied by L0 of x प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय L1 ऑफ x. अभी आपके पास y0 y1 के तो वैल्यूज है ही रेडीमेड, है ना. यहाँ पे y0 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y3 है, सॉरी y2 था यहाँ पे. ठीक है, एंड सो तो y0 y1 y2 के तो वैल्यूज आपके पास है ही. आपको बस क्या लर्न करना है? हाउ टू फाइंड दिस L0 ऑफ x, L1 ऑफ x, L2 ऑफ x एंड सो ऑन, है ना. यहाँ पे मैंने नीचे सिंपलीफाइड फॉर्म भी दिया. सो हियर y इज इक्वल टू y0 L0 ऑफ x, y1 L1 ऑफ x, y2 L2 ऑफ x एंड सो ऑन अप टू yn ln ऑफ x. So here we don't know what is meant by L0 L1
L2 एंड Ln. ओके, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट में x लिखा मतलब ये क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ x है. L1 of x क्या, अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगेन दिस इज अ polynomial in x, and those polynomial are called as Lagrange's interpolating polynomials. ठीक है, so these LIs are actually called as Lagrange's interpolation या Lagrange's interpolating polynomial. ठीक है, so this LI are actually called as Lagrange's interpolating polynomial. अभी बस क्वेश्चन क्या कि how you find the values of L0, L1 and L2 and so on. Okay, तो उसके लिए ये रिजल्ट है. ओके, इसको भी सिंपली कैसे याद रखना है मैं आपको बोलता हूँ. सो दिस इज योर वाई. ओके, आपको बस यहाँ पे L0, L1, L2 के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. सो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है. ओके, जब आप L0 कैलकुलेट करते हो ना तो न्यूमरेटर आपका क्या आता है. ओके ओके, x से सारे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, मतलब x1, x2, x3, x में से सारे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो. ओके, एक्सेप्ट x0, क्योंकि L0 मतलब उसके करस्पॉन्डिंग टर्म होता है x0. तो एक्सेप्ट x0 मतलब x0 को छोड़ के सारे वैल्यूज x से सब्ट्रैक्ट करो. ओके, दैट इज योर न्यूमरेटर, है ना, दिस इज योर न्यूमरेटर. एंड व्हाट इज योर डिनोमिनेटर. ये सेम न्यूमरेटर आपको नीचे कॉपी करना है, जस्ट रिप्लेस x बाय x0. इन दिस वे वी हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ L0. L0 नहीं समझ में आया तो L1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो L1 का फॉर्मूला क्या आएगा. L1 मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म क्या आता है, x1. तो आपका न्यूमरेटर क्या आता है, x में से. ओके, फ्रॉम x सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ xi, subtract all the values of xi except, okay, except x1, मतलब except where i is not equal to 1. तो आप देखो x0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x0 के बाद डायरेक्टली x2 आ रहा है, मतलब x1 को छोड़ के सारे वैल्यूज आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने. और नीचे क्या आता है, व्हाट इज योर डिनोमिनेटर. राइट डाउन दिस सेम, राइट डाउन दैट सेम न्यूमरेटर, जस्ट रिप्लेस x बाय x1 एंड सो ऑन. अभी आप कोई भी वैल्यू आने दो, आपको फॉर्मूला पता है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ओके, अभी भी आपका ये पार्ट थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होगा. ओके, सो आई विल टेक वन सिंपल एग्जांपल. सो दैट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट you need to remember as far as Lagrange's interpolation formula is concerned. An important thing is what this result is true for equally and unequally spaced data. This is very very important result. कि जनरली आपको भी पता है रियल लाइफ भाई जनरली जो डाटा आता है वो कभी इक्वली स्पेस होगा ही नहीं, है ना. तो ज़्यादातर आपको वर्कआउट कहाँ पे करना है, ऑन दी अनइक्वली स्पेस डाटा. देयरफॉर दिस मेथड हैज ट्रेमेंडस एप्लीकेशन इन एवरी ब्रांच. ओके, सो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ, सो आई विल स्किप दैट पार्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिखाई भी दे रहा है कि कितने बार ये एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. ओके, तो एग्जाम में क्लियर कट मेंशन होता है कि कौन से मेथड से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस. फाइंड द Lagrange's interpolating polynomial passing through the set of points. So generally this table is called as tabulated data. Tabulated data का मीनिंग क्या होता है कि विदाउट मतलब यू डोंट हैव अ फंक्शन, इंस्टेड ऑफ फंक्शन वी जस्ट हैव द करस्पॉन्डिंग टेबुलेटेड वैल्यूज. ओके, आपके पास यहाँ पे फंक्शन नहीं होता, फंक्शन की जगह पे आपके पास उसके वैल्यूज आ जाते हैं. फंक्शन मतलब क्या होता है, y, है ना. तो आपको y की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे, बट इतना पता है कि आपके पास उस फंक्शन के वैल्यूज है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे e⁻x फिक्स करता हूँ, या e⁻x अभी बहुत बार हो गया, इफ आई फिक्स x², है ना, तो मेरे पास फंक्शन गिवन नहीं होगा. फंक्शन की जगह पे क्या रहेगा, फॉर x = 0 दैट फंक्शन टेक्स वैल्यू 0, फॉर x = 2 दैट फंक्शन टेक्स वैल्यूज 4, फॉर x = 3 दैट फंक्शन टेक्स वैल्यू 9. तो इस फॉर्म में जो डाटा आता है दैट डाटा इज कॉल्ड एज टेबुलेटेड डाटा. ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द Lagrange's interpolating polynomial, ओके, पासिंग थ्रू दिस set of points, या simply just find a function, okay, which satisfies this given data, है ना. find a function, find a y which actually satisfies this set of points. और उसके बाद करना क्या है, y आने के बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर 1.5, है ना. 1.5 टेबल के अंदर ही है, 0 to 2 के रेंज में है, therefore it is called as interpolation, है ना. और नेक्स्ट क्या बोला है, also calculate dy by dx for x is equal to 0.5, also calculate the derivative of y when x is equal to 0.5, and also calculate their integration, okay, where x vary from 0 to 3. okay, so that is the given information. okay, so हाँ, तो पहले आपको करना क्या है, इन फर्स्ट स्टेप, ओके, डिनोट दिस वैल्यूज. तो आपको सॉल्यूशन में आप यहाँ पे अभी ये मैंने बुक से डायरेक्टली लिया, तो आप इस मेथड से भी जाते हो, दैट इज ऑल्सो ओके. ओके, तो आप क्या करो, रिमेंबर दिस इज योर x0, this is your y0, okay, this is your x1. I hope this is visible. Let me erase. So first
value is x0, second value is x1, then x2, दिस इज y0, y1 एंड y2। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू y0 प्लस L0, y0 इंटू L0 ऑफ x, y1 इंटू L1 ऑफ x, y2 इंटू L2 ऑफ x। अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि y कंसिडर समेशन ओनली अप टू i इज इक्वल टू 2 ओनली, है ना। समेशन यहाँ तक क्यों कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि आपके पास y2 तक की वैल्यूज है। ठीक है, हाँ, अभी उसमें y0, y1, y2 तो आपको क्लियरली पता है, y0 इज 4, y1 इज 3, y2 इज 6। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द L0, L1 एंड L2। अभी L0 का फॉर्मूला क्या है, इन न्यूमरेटर x में से ओके, सो फ्रॉम x सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ x साइज एक्सेप्ट x0, x0 को छोड़ के सारे वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करो। सो x माइनस x1, x माइनस x2, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2। नाउ नीचे क्या होने वाला है, नीचे x की जगह पे बस x0 रखो, बट x0 की वैल्यू क्या है 0, है ना। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, इसको सॉल्व करो, विल गेट दिस प्रॉब्लम। अभी ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप इसको कैसे सॉल्व करते हो अभी वो समझ में आ जाएगा सबको। नाउ x1, है ना, x1 का सॉरी L1 ऑफ x। सो L1 ऑफ x आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इन न्यूमरेटर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ xi एक्सेप्ट दिस x1, x1 को छोड़ के, है ना, x1 मतलब क्या है, 1 को छोड़ के सारे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज x माइनस 0 एंड x माइनस 2, एंड इन डिनोमिनेटर राइट डाउन द सेम टर्म, जस्ट रिप्लेस x बाय x1 विच इज 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 2। So we will get polynomial like this. Similarly calculate L2 of x. Okay, so in numerator subtract all the xi's except x2, x2 मतलब 2, so x minus 0 and x minus 1, and in denominator write down that same numerator, just replace x by x2। okay, तो ये से तो ये हो गया आपका L2 of x। okay, I hope ये बस कैलकुलेशन का पार्ट है, सबको समझ में आ जाएगा। okay, and after this now just write down the y। so y की वैल्यू क्या है, y is equal to y0, y0 is 4, फिर आ जाती है L0 of x, okay, then y1, उसके बाद L1 of x, उसके बाद L2 एंड उसके बाद y2 एंड L2 of x। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, है ना। ये आपकी मिस्टेक होगी ना यहाँ पे होगी, क्योंकि आप ये कोएफिशिएंट में कहीं पे ना कहीं पे आप मिस्टेक करते हो। ठीक है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से करना है, ये कैलकुलेशन बस आपको अच्छे से करना है। ये जो आपकी लास्ट पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये आप सबकी मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स ये परफेक्ट आपकी मैच होने चाहिए। अगर यहाँ पे किसी भी एक कोएफिशिएंट में मिस्टेक हो जाती है विच इज टोटली रॉन्ग, ओके, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, क्योंकि इसमें आपको तभी मार्क्स मिलते हैं जब आपका आंसर परफेक्ट या करेक्ट आता है। अगर आपका आंसर कहीं पे रॉन्ग आ रहा है या कहीं पे किसी कोएफिशिएंट में मिस्टेक हो रही है, ओके, विल नॉट गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन, है ना। तो आपकी मिस्टेक होती है जनरली ये इस कैलकुलेशन में होती है, या ये जो पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन करें उसमें मिस्टेक होगी। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादातर कैलकुलेशन में, ना कि मेथड में, क्योंकि मेथड क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है या सिंपल है for the understanding. So here your y is 2x² minus 3x plus 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y कैलकुलेट करो फॉर x इज इक्वल टू 1.5, तो इसमें x इक्वल टू 1.5 पुट करो, यू विल गेट दैट वैल्यू एज 4। हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिवाइड बाय x कैलकुलेट करो, तो डिवाइड बाय x इसका क्या आता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 4x माइनस, है ना, 4x माइनस 3, सो 4x माइनस 3, और वो डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है फॉर x इज इक्वल टू 0.5, तो x की जगह पे 0.5 पुट करो, दैट आंसर इज -1। फिर उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 to 3, जस्ट इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to 3, यू विल गेट योर आंसर एज 16.5। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अभी प्रीवियस एग्जांपल में जो आपके पास डाटा गिवन था वो डायरेक्टली टेबल के फॉर्म में था, यहाँ पे बस उन्होंने जो डाटा दिया है, ओके, वो इस फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन का भी मीनिंग, मतलब फंक्शन भी समझ में आ रहा है, ओके, बट इसको आप बट वी कांट टेक दैट फंक्शन डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता कि यहाँ पे फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है ना, 1.0 cube is this, 1.2 cube is this, 1.3 cube is this, 1.5 cube is this। तो ये जो वैल्यूज है 1, 1.2, 1.3, 1.5, these are your x, the corresponding answer is your y, like this। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल से क्लियरली समझ में आ रहा है, योर फंक्शन इज x क्यूब, है ना, y की वैल्यू का x क्यूब। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करो, आपको y कैलकुलेट करना है, बट कौन से मेथड से, हियर वी हैव टू फाइंड दिस y बट यूजिंग Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
ओके। सो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है, ओके। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिखोगे y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया आपका आंसर, ओके। या आपने y ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किया, बट आपको यहाँ पे जो y कैलकुलेट करना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ओके। सो फ्रॉम दिस गिवन डाटा हियर यू कैन कंस्ट्रक्ट दैट टेबल, ओके। And now, what is our formula? So here, let me erase all this data. So here, this is my x naught. Let me erase again. So here, this is my x naught, है ना? This is my x1. This is my x2. This is my x3, and corresponding, this is my y naught. This is my y1. This is my y2. And this is my y3. So what is my y? इस केस में आपका y क्या आने वाला है? बाय Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला योर y इज डिफाइंड एज y नॉट मल्टीप्लाई बाय L नॉट ऑफ x, करेक्ट, प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय L1 ऑफ x प्लस y2 मल्टीप्लाई बाय L2 ऑफ x एंड प्लस y3 मल्टीप्लाई बाय L3 ऑफ x। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। फिर उसके बाद L नॉट, L1, L2, L3 ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करो Lagrange's पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ पे अभी ये बुक का आंसर मैंने दिया है तो आपको डायरेक्टली ये समझ में आ रही है, जंप कर रहा है, ओके। बट आपको आपके रेगुलर स्टेप्स फॉलो करने हैं, है ना। सो योर y नॉट इज 1, है ना, योर y नॉट इज 1। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर L नॉट? L नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट स्किप x नॉट को छोड़ दो, बाकी सारे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। सो x माइनस 1.2, x माइनस 1.3, x माइनस 1.5 और नीचे, ओके, x की जगह पे 1 रखो, ओके, एंड राइट डाउन कॉपी दैट सेम टेबल। फिर आ जाता है L2 मतलब क्या करना है आपको? इन केस ऑफ L2 वी हैव टू, सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू इज L1, है ना। सो नेक्स्ट वैल्यू इज L1। सो इन केस ऑफ L1 वी हैव टू स्किप दिस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1.3, x माइनस 1.5 और नीचे x की जगह पे 1.2 रखो एंड मल्टीप्लाई बाय योर y1 विच इज 1.728 एंड रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर दिस इज योर L2 मल्टीप्लाई बाय y2, दिस इज योर L3 मल्टीप्लाई बाय y3। हाँ, अभी आप जो मिस्टेक करने वाले हो ना इसके आगे ही करने वाले हो, ठीक है, इसके आगे आपकी मिस्टेक होगी। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ओके। हाँ, अभी आपके पास इसके आगे कैलकुलेशन करने के लिए, ओके, आप, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कि यूजिंग Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला, उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं पे कि Lagrange's इंटरपोलेशन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, आई विल शो दैट पार्ट, ओके, फाइंड द Lagrange's इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ही ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने। बट अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हो, यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको Lagrange's इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है या Lagrange's पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको Lagrange's पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है। उन्होंने क्या बोला है कि आप Lagrange's इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली ये वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसलिए मैं इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, इफ यू सिंप्लीफाई दिस देन यू विल गेट अ Lagrange's पॉलिनोमियल, है ना। बट आई डोंट वांट टू फाइंड दैट Lagrange's पॉलिनोमियल। मुझे बस करना क्या है, x इक्वल टू 1.07 के लिए मुझे y कैलकुलेट करना है। यही तो क्वेश्चन था, है ना। 1.07 क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करो, इट मींस कैलकुलेट योर y व्हेन x इज इक्वल टू 1.07। तो यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटिंग, so now see this jump, without calculating the Lagrange's interpolating polynomial, I will directly put x is equal to 1.07 in this, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला ही नहीं कि Lagrange's polynomial कैलकुलेट करो, नहीं बोला है तो इस कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्ट क्यों करना है। डायरेक्टली आप x की जगह पे 1.07 पुट करो और फिर ये कैलकुलेशन कैसे में करो, ओके, एंड दैट वैल्यू इज y इक्वल टू 0.3581 ओके। तो ये स्मार्ट मूव भी आपको समझ में आना चाहिए, ओके। अगर आपने इसके बाद पॉलिनोमियल कैलकुलेट किए, उसके बाद अगर आपने x इक्वल टू 1.07 पुट भी किया, दैट इज आल्सो करेक्ट वे, वहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट सबसे ज़्यादा टाइम जो जाता है ना वो पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने में ही जाता है, इतना आप हमेशा याद रखो। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन है इसमें आप 100% मिस्टेक करोगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। इट इज़ नॉट दैट मच ट्रिवियल, इट लुक ट्रिवियल, देखने में सिंपल लग रहा है कि करना क्या, चलो ये कैलकुलेशन तो करने है ना, बट ये आप कितने स्मार्टली करते हो ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हाँ, तो इसलिए अगर उन्होंने मेंशन किया है कि Lagrange's पॉलिनोमियल कैलकुलेट करो, देन ओनली यू हैव टू कैलकुलेट दैट पॉलिनोमियल, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसमें वैल्यूज पुट करके आगे जा सकते हो, ठीक है। we'll take the one more example, so it is just the repetition, find the Lagrange's interpolation polynomial
पासिंग थ्रू दिस, और उसके बाद बोला क्या है कि x इक्वल टू 5 के लिए y कैलकुलेट करो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करो फॉर x इज इक्वल टू 1.2 एंड इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो फ्रॉम 0 to 2. सो दिस इज योर x नॉट, x1 x2, this is your x3, this is your y नॉट, y1 y2, this is your y3. तो आपका फॉर्मूला क्या आने वाला है ना, y इज इक्वल टू एल नॉट एक्स नॉट प्लस L1, सॉरी यहाँ पे आप y नॉट लेते हो, सो योर y इज L नॉट y नॉट प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 एंड प्लस L x नॉट x1 x2 x3. तो कहाँ तक जाना है, L3 y3. अभी आप देखो यहाँ पे y नॉट आ रहा है ना, L नॉट का फॉर्मूला क्या है, x नॉट को स्किप करना है, आप देखो स्किप हो रहा है, नीचे x की जगह पे x नॉट आ रहा है. अब ये फॉर्मूलेस कैसे लिखना है आपको मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद सारे वैल्यूज पुट करो. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में था कि पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन करो जिसमें 100% आप मिस्टेक करोगे. सो बी केयरफुल विद दिस कैलकुलेशन. ओके, आई एम अगेन टेल यू दिस इज नॉट द ट्रिवियल कैलकुलेशन, ठीक है. सो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. और फिर उसके बाद y कैलकुलेट करना है फॉर x इक्वल टू 5, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है फॉर x इज इक्वल टू 1.5, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 to 2 एंड दैट वैल्यूज आर दिस, है ना, माइनस 0.488, योर इंटीग्रेशन इज माइनस 5.333 एंड सो ऑन.